Hey everyone, this is me Ashika Messi and welcome to my channel Biology Gram. So आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 12 दैट इज़ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 है मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, मेरे चैनल पे इसका पार्ट 1 है। यू कैन क्लिक द लिंक एंड यू कैन गेट द वीडियो। सो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। बट टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ दिस डिफरेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इस डिफरेंस के बेसिस पे ही एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन के आ जाता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या फिर चाहे वो नीट का एग्जाम हो, क्वेश्चन आ जाता है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको बताऊंगी कुछ 6 पॉइंट्स दोनों में, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एंड उनके बेसिस पे क्वेश्चन आता ही आता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। The difference between asexual reproduction and sexual reproduction, talking about asexual reproduction, it does not involve the formation or fusion of gametes. Obviously अगर formation or fusion of gamete नहीं होगा, fertilization will not take place. This is a major point or the reason behind the point कि अगर fertilization ही नहीं होगा, formation fusion of gamete नहीं होगा, fertilization will not take place. Whereas talking about the sexual reproduction, obviously it will involve the formation of fusion of gametes, and through that fertilization will take place because fusion of gamete हो रहा है, इसलिए fertilization भी होगा। So our next point in asexual reproduction is that the offspring produced by asexual reproduction is genetically identical to the parents and they are referred as clones. If you have watched my first video, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको clones के बारे में बताया था। What are clones? The offspring that are identical or exact copy of their parents are referred as clones, यानी कि plants. Plant will produce the exact copy of its same, इसलिए उनको clone कहा जाता है। और ये question बहुत बार आता है MCQs में, 1 word question में, so it is important। अब इसका रीज़न क्या है? बिकॉज क्लोन्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, क्रॉसिंग ओवर डू नॉट टेक प्लेस, दैट इज वाई दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स एंड दे आर रेफर्ड एज क्लोन्स। Whereas talking about the sexual reproduction, the offspring produced by the parents are not identical and through that it shows or it involves a variation in a population। ये पॉइंट भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिस पर क्वेश्चन आता है वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, यानी कि वैरायटी। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर क्वाइट डिफरेंट विल and through that it will show variation in a population। तो ये पॉइंट भी important है बिकॉज इनमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So the third point is in asexual reproduction is that it is a simple and a fast process। क्यों? Because obviously the offspring will be similar to its parents, exact copy to its parents, it will take no more longer time, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, and it is a fast process। जल्दी वही offspring अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करेगा। As talking about the sexual reproduction, it is a complex, slow and elaborate process। Obviously it will take time। Sexual reproduction में when fusion of gamete takes place, zygote is formed। zygote form होता है, उसके बाद फिर वो fetus बनता है, embryo बनता है, different stages आती हैं and at the end it form in a fully developed baby। So obviously it will take time, it's a complex process। So जो हमारा 4th point है in asexual reproduction, it says that it only involves mitosis। अब अगर आपने सेल डिविजन पढ़ा होगा क्लास 11th में, obviously I will make a video on that chapter as well। बट अगर आपने ये पढ़ा होगा तो जब मियोसिस होता है 2n से n बनता है, राइट। रिडक्शन डिविजन होता है एंड 2n से n बनता है। बट व्हेन
द ऑफस्प्रिंग इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट्स, यानी कि जब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो 2n विल ऑब्वियसली प्रोड्यूस 2n ओनली, राइट. 2n ही बनाएगा. तो इसको हम इक्वेशनल भी बोल सकते हैं, दैट 2n विल प्रोड्यूस 2n एग्जैक्ट कॉपी, इट विल बी इक्वेशनल, सेम होगा, राइट. तो इसीलिए इट इज रिटन दैट इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस. So now talking about the sexual reproduction, it involves only meiosis. अब meiosis कैसे? सेल डिविजन की बात करते हैं. जैसे मैंने बताया आपको 2n से 2n प्रोड्यूस हो रहा है, सेम चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो इट भी 2n से 2n ही प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज़ इक्वेशनल, राइट. तो अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर एक ऑर्गेनिज्म विच इज़ अ 2n ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस अ गैमेट दैट इज n, यानी कि 2n से वो n पे जा रहा है, तो क्या होगा? रिडक्शन डिविजन. 2n से n पे जाने पे रिडक्शन डिविजन विल टेक प्लेस एंड इट विल फॉर्म meiosis. Meiosis is a process that will be take place in 2n to n process. तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट सेज दैट इट इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल पेरेंट, यानी कि इट इज़ यूनिपेरेंटल. एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, इसलिए इसे यूनिपेरेंटल कहा गया है, राइट. नाउ वेयर एज टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ बाय पेरेंटल प्रोसेस, यानी कि 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस. सो asexual reproduction uniparental, sexual reproduction biparental. So the last point, that is the sixth point in asexual reproduction, is that it does not play an important role in evolution process. अब इस point पे एक अच्छा question बन के आपके सामने आ सकता है, that why does asexual reproduction does not play a vital role in evolution process. अब asexual reproduction है तो fertilization will not take place. Fertilization will not take place through that variation नहीं होंगी. Variations नहीं होंगी तो obviously जो offspring produce होंगे that will be identical to their parents. There will be no fertilization, there will be no variation through that or through which identical offspring ही produce होगा. So this is a reason behind the point कि if there will be no fertilization, no variation, the offspring will be exact copy of their parents, and through which evolution process में asexual reproduction का कोई vital role नहीं है. Whereas talking about the sexual reproduction, it plays a vital role in evolution process. Obviously, in sexual reproduction, fertilization will take place. Fertilization will take place through that variation will occur. Variations होंगी तो जो offspring होगा that will not be identical to the parents. So हम डिटेल में अब बात करेंगे what is asexual reproduction, right. हमने जो पहले किया obviously it was a difference. ये जो point मैंने आपको बताया था वो भी important है, उसे अपने आंसर में include कर सकते हो. बट अब हम कोई अगर पूछे व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो 3 पॉइंट हैं, दीज आर द की पॉइंट्स टू डिफाइन व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज यूनिपेरेंटल विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन. बहुत रेयर केस में होता है, कभी गैमेट फॉर्मेशन होता है, वरना ऑलवेज इट इज विदाउट गैमेट फॉर्मेशन. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट्स, यानी कि दे आर क्लोन्स. एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो दैट विल बी नोन एज क्लोन्स. ये भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो. द थर्ड पॉइंट इज mitosis is an essential mode of reproduction. 2n will produce 2n only, equational. इसलिए mitosis is the most essential method or mode of asexual reproduction. हमने asexual reproduction के बारे में पढ़ लिया है, right? Now let's talk about the types of asexual reproduction. अब इसको याद कर देंगे ना, एक बड़ी अमेजिंग सी ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है. इसको याद करने से, इस ट्रिक को याद करने से आपको सारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद हो जाएंगे, ठीक है. तो मैं अभी कुछ लेटर्स बोलूँगी, उस लेटर्स को डिफाइन करेंगे और फिर हमें जो ट्रिक है समझ में आ जाएगी. तो जो ट्रिक है वो है FFBRSV. ये थोड़ा राइमिंग हो गया है, FFBRSV. अब ये FFBRSV क्या है? F यानी कि जो पहला F है, that means finally. the second F is friend. जो B है वो डिफाइन करेगा bring.
R stands for roasted, S stands for spicy and lastly V stands for vegetables. यानी कि अगर ये साथ में बोलें तो finally friend bring roasted spicy vegetables. अब इससे देखिए कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आता है. फाइनली यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है उसका फाइनली का फाइ मीन्स वर्जन. सेकेंड एफ जो कि है फ्रेंड, उस फ्रेंड का फ्रेगमेंटेशन. जो बी है उसका ब्रिंग यानी कि बडिंग. वैसे ही आर की बात करें दैट इज रोस्टेड, दैट डिफाइंस रीजेनरेशन. एस से है स्पाइसी यानी कि SPICY स्पोर फॉर्मेशन. इससे याद रहेगा. एंड द लास्ट इज द मोस्ट इजी वन, वेजिटेबल यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. था ना कितना इजी, सिंपल सा, याद रखो. फाइनली फ्रेंड ब्रिंग रोस्टेड स्पाइसी वेजिटेबल यानी कि फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. एज सिंपल एज दैट. अगर इस ट्रिक को याद रखोगे ना तो कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है. सो जब भी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे ये ट्रिक यूज करना एंड यू विल गेट ऑल द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड आई होप ये ट्रिक पसंद आई हो. अच्छी लगेगी ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना कैसी लगी. सो जो हमारा पहला पॉइंट है फिजन, दैट इज फिजन का मतलब क्या है. फिजन मीन्स समथिंग टू स्प्लिट और डिवाइड. ठीक है, दैट इज फिजन. अब फिजन की अगर हम बायोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल सेल्स इनटू 2 or more डॉटर सेल्स आर फिजन और इज फिजन. ठीक है, यानी कि एक सेल धीरे धीरे 2 डॉटर सेल्स में, उससे ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उसे कहते हैं फिजन. अब फिजन का जो पहला टाइप है ना वो है बाइनरी फिजन. में 2 टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन. टॉकिंग अबाउट द बाइनरी फिजन, अगर आप ये डायग्राम देखो, ठीक है, तो एक सेल है, न्यूक्लियस है, धीरे धीरे वो न्यूक्लियस भी इलाबोरेट हो गया एंड एट द एंड वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो गया, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया. तो बाइनरी फिजन के डेफिनेशन क्या होगी, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल सेल्स इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स इज बाइनरी फिजन. ठीक है, और ईच ऑफ विच ग्रोज रैपिडली इनटू एन अडल्ट. और इसमें एक और पॉइंट है कि जो सेल डिविजन होता है, the 2 cells which are then divided are quite similar in size. उनका साइज थोड़ा exactly सेम ही होता है. ठीक है, they have no difference in their sizes, वो सेम ही रहता है. इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आते हैं that it divides horizontally. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो की पॉइंट्स कहीं आप बोल सकते हो, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा फ्रेम करने में अपना आंसर. ठीक है, तो इट इज़ हॉरिजॉन्टली, इट डिवाइड्स हॉरिजॉन्टली एंड इट इज़ इक्वल इन साइज. ठीक है, तो आप देख सकते हो डायग्राम में न्यूक्लियस था एक सेल में, फिर न्यूक्लियस भी डिवाइड होने लग गया एंड एंड में वो स्प्लिट हो गए 2 डॉटर सेल्स में. कुछ आगे पॉइंट्स आते हैं दैट इट इज़ अ सिंगल सेल्ड एनिमल लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, प्लानेरिया एंड जुगेसिया एज वेल. इट कैन बी सिंपल, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिविजन. यानी कि इसमें आपको बताया ना हॉरिजॉन्टली डिवाइड होते हैं, उसी तरह. नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन मतलब बहुत सारे डिविजन होंगे, स्प्लिटिंग होंगी. ठीक है, अब ये डायग्राम आप देख सकते हो, एक सेल है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है एंड देन वो धीरे धीरे बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, तो वैसे ही इसकी डेफिनेशन की बात करें तो स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स इनटू न्यूमरस डॉटर सेल्स इज मल्टीपल फिजन which also grows rapidly into an adult. इसका एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम एंड अमीबा. ठीक है, प्लाज्मोडियम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट in this because plasmodium which causes malaria in human RBCs and liver cells does multiple fission. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट के क्वेश्चन में आ सकता है. what causes malaria, that is plasmodium. Plasmodium causes malaria. तो यहाँ देख सकते हो आप कि बहुत सारे सेल फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए इसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है. तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही. आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स और पॉइंट डिस्कस करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच विल ऑब्वियसली हेल्प यू इन एग्जाम. ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना. ठीक है, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना. सब्सक्राइब करने के बाद ज़रा बेल आइकन भी हिट कर देना सो दैट व्हेनेवर आई कम विद अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड.
So until we meet the next time, bye bye.